Hello everyone. So students, previously we had started up with geography's chapter manufacturing industries, and over there we have discussed about the meaning of the term manufacturing and what is the need or importance of manufacturing. So let's continue with the same chapter today. Let's get started. So today, first of all, we are going to discuss about the various factors which contribute towards the location of industries. Factors को अगर आप classify करो in broad, तो how you can classify them? That is physical factors and human factors. Let's see the physical factors first in detail. So the first factor which is responsible for a location of an industry is raw material. आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है. प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इज यू शुड बी हैविंग द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोडक्शन अवेलेबल विद यू. So that is closeness to the source of bulky and the perishable raw material. That is, example for that can be iron and steel industry, sugar industry. Raw for example, you are manufacturing sugar from sugar cane. तो रॉ मटेरियल क्या हो गया? शुगर केन. और उससे आपने एंड प्रोडक्ट क्या बनाया? शुगर. तो आपके पास रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? इट शुड बी अवेलेबल समवेयर नियर बाय टू यू, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री दैट विल बी इंक्रीजिंग. You can see through this slide few pictures I have attached over here of the raw material, the various kinds of raw material those are needed over here by various industries. Then the second factor which is responsible for a location of an industry, again it is a physical factor, that is power resources. Closeness to the sources of economically viable power resources. से फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मीन्स एल्यूमिनियम की अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो फर्दर, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड. पावर रिसोर्स से मेरा यहाँ पे सिंपल टर्म्स में क्या मीनिंग है? दैट देयर शुड बी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, देयर शुड बी व्हाट? देयर शुड बी एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. You can see again through the picture an interesting picture of electricity, use of electricity in our daily life that is being described over here. Electricity की बात हो रही है. Electricity क्या है? It can be used in each and everything, even in our day to day activities. Electricity, it plays a major role. It is playing a important role of our industry is water. Availability of water in abundance for processing of raw material. जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल जूट इंडस्ट्री में, कोयर इंडस्ट्री में, वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? वाटर. ठीक है, वाटर भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन असेंशियल रॉ मटीरियल. ठीक है, इट इज़ एक्टिंग एज अ बेस फॉर द प्रोडक्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज. Availability of water. Next factor after this is climate. Climate हो good climate simple terms में, या फिर आप बोल सकते हो the favorable climatic conditions which are needed for the processing of raw material. raw material की processing के लिए जो climate चाहिए, जैसे कि लास्ट डे भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था कि कॉटन क्लॉथ दैट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ व्हाट? कॉटन. तो अब उसके लिए कॉटन का प्रोडक्शन करना पड़ेगा. पहले एग्रीकल्चर के थ्रू कॉटन का प्रोडक्शन करेंगे. तो अब कॉटन के प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? इट विल बी नीडिंग फेवरेबल क्लाइमेट.
ठीक है. तो द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर प्रोसेसिंग अ रॉ मटेरियल दैट इज नीडेड. Example for that is, best example is cotton textile industry. Reason, it requires more humidity which is there located in Maharashtra. These are various physical factors. एक बार फिर से names बताती हूँ. देखो physical factors के that we had discussed. One is raw material, second one electricity, third one water, fourth one climate. First human factor which is responsible for location of a industry is, that is labor. There should be availability of labor. Industry में production कौन करेगा? Who is responsible for carrying out the production? It's obvious the production it will be done by the labor. तो हमें क्या चाहिए? We are needing cheap as well as skilled labor. स्किल्ड लेबर से क्या मीनिंग है मेरा कि लेबर को टेक्निक भी आनी चाहिए और एट द सेम टाइम जो लेबर के चार्जेस हैं यहाँ पे, द वेजेस विच आर गिवन टू द लेबर, दैट इट शुड बी अवेलेबल एट अ रीजनेबल कॉस्ट ओवर है. एग्जाम्पल है इसका डायमंड कटिंग इंडस्ट्री इन सूरत. डायमंड को कट कर रहे हो, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री की बात हो रही है. तो क्या डायमंड को कट करते हैं वो वेरियस शेप्स में, जिस भी डिज़ायर्ड शेप में चाहिए. तो उसके लिए क्या चाहिए? स्किल होना चाहिए उसको कट करने का. तो दैट इज़ वाई ओवर हेयर वी आर अटैचिंग इट इन अ चीप एंड स्किल लेबर्स एग्जाम्पल. ठीक है. अदर देन चीप एंड स्किल लेबर, even over here in this slide you are going to see the labor working over here. Transport, the next factor which is there as a human factor is transport. आपको रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना है, तो फॉर दैट व्हाट इज़ नीडेड? ट्रांसपोर्ट. आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिया रॉ मटेरियल से, तो अगेन उस प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तक लेके जाने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट दैट इज नीडेड. Finished goods. It can be any means, through waterways, through airways, railways, roadways, any means of transport that can be used over here. Next human factor which is responsible for our location of our industry is capital. That is capital investment by a particular industry. Obvious है ये production किस चीज़ पे depend कर रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री कितना इन्वेस्ट कर सकती है. इंडस्ट्रीज को कैसे क्लासीफाई करते हैं हम? दे कैन बी क्लासीफाइड एज लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल. ठीक है. बट वो कैसे क्लासीफाई होते हैं? लार्ज स्केल एज स्मॉल स्केल. दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो एवरी इंडस्ट्री इट नीड्स व्हाट? इट नीड्स द कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज़ अवेलेबल थ्रू द बैंक. ऑब्वियस है इंडस्ट्री अपने पास उतना मनी रख के तो बैठी नहीं है, तो वो मनी कहाँ से आएगा? दैट मनी विल बी मेड अवेलेबल टू आवर इंडस्ट्री थ्रू बैंक. इवन इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन. Next factor which is responsible for a location of an industry over here is market. Market is the most important element again. How it is the most important element again? Demand and supply, वो क्या करते हैं? They are playing an important role in the economy of a country. Demand for the market is meant by the supply from the industry. जैसे आपकी इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो अब गुड्स कौन से प्रोड्यूस करोगे? इट्स ऑब्वियस इट्स बेनिफिशियल टू प्रोड्यूस ओनली दोज गुड्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विच आर इन डिमांड. प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड इज यूजलेस. क्यों यूजलेस हो गया? रीज़न, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी बायर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो,
कहाँ पे मैन्युफैक्चर करोगे? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को क्या बोल दिया? इंडस्ट्री विल बी सप्लाइंग ओवर है दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, whichever product is there in the market. Another factor which is responsible for a location of a industry is government policies. गवर्नमेंट क्या करती है? जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट कौन कर रहा है? दोज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट करती है इंडस्ट्रीज़ को? थ्रू वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज़. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर मेड टू रेगुलेट द सेटिंग अप एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज. दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. So that's it for today. Today we have discussed the various factors which are responsible for the location of a industry. In our next session we are going to discuss about the classification of industries. So thank you.